Here, in this topic, I am going to teach you about the Biot and Savage law. So, before saying you about the Biot and Savage law, let me say something about the right hand thumb rule. Suppose this is a current carrying wire and हम लोग जानता है जे a current carrying wire it produces a magnetic field around it. एक करंट कटिंग वायर ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि जब हम लोग इसके साथ ये सोर्स ऑफ करंट के एक सोर्स ऑफ करंट के साथ लगा देगा, सो जब एक पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, देन द atoms inside the conductor or the electrons flows in a particular direction and जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसका भीतर जो एटम्स का जो अलाइनमेंट जो होगा वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा. जब ये एटम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाएगा, नाउ एक मैग्नेटिक फील्ड इसका अराउंड में प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दैट टू आल्सो इन द फॉर्म ऑफ concentric circles. Now to determine its direction, if this is suppose if this is south, if this is north, so towards the east of the wire, the direction of the magnetic field is vertically inward, and towards the west of the wire, the magnetic field lines are vertically outwards. Now this vertically inwards and vertically downwards कैसे कर रहा है? Now from this right hand thumb rule, ये right hand thumb rule क्या है? ये right hand thumb rule it indicates the direction of the magnetic field. क्या बोलता है? If the thumb points in the direction of the current, then the direction in which the remaining finger swirls around gives the direction of the magnetic lines of force. So if the thumb points in the direction of the current, then the direction in which the remaining finger swirls around it. So देखो ये, if this is your direction of the current, the magnetic field lines are going inside here, and from towards the west of the wire, the magnetic field lines are coming outwards. It is going inwards and it is coming outwards. So and they are in the form of concentric circles. So right hand thumb rule से क्या होगा? ये determine the direction of magnetic field. Now the thing is that this magnetic field is a vector quantity. That means it has direction as well as it has magnitude also. So magnitude को कैसे फाइंड करेगा? मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेगा? एक इस तरफ एक, this is the direction of the current, and towards the, suppose this is towards the west of the wire, here the magnetic lines of force are vertically inwards. So इस पूरा के लिए यहाँ पर फाइंड करें, इस पूरा the magnetic field due to this whole wire is to be determined. So to determine that हम लोग क्या करेगा? ये पूरा लेंथ को small elemental लेंथ में ब्रेकअप कर देगा, small elemental लेंथ में ब्रेकअप कर देगा. So if this is the distance r, and if this is angle theta, हाँ, so बोल रहा है first let dv vector be the magnetic field strength due to elemental length dl vector.
यहाँ पर एक स्मॉल पोर्शन एलिमेंटल लेंथ ये ब्रेकअप कर दिया। एक्चुअली क्या है, ये पूरा वेट के लिए यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा, इसलिए फर्स्ट क्या करेगा, यहाँ से स्मॉल 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 एलिमेंटल लेंथ डीएल वेक्टर ब्रेकअप कर दिया। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस स्मॉल पोर्शन ऑफ द वेट के लिए यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड करेगा। सो जब ये फाइंड आउट हो जाएगा देन पूरा वेट के लिए फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेगा, सब डीबी के ऊपर समेशन अप कर देगा, एंड समेशन अप मतलब इंटीग्रेट। सो यहाँ पर क्या होगा, ये डीबी वेक्टर is directly proportional to the magnitude of the current. This is the magnitude of current. This dv vector is directly proportional to the elemental length. This dv vector is inversely proportional to the square of the distance. This dv vector is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल थीटा। ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वेयर टू पी, और यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द लाइन जॉइनिंग वेयर to P. So combining all this, ये dB क्या हो जाएगा, proportional to I dl sin theta by r square. Now this thing is your dB. इसको हम लोग जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएगा क्या होगा, दिस डीबी वेक्टर दिस डीबी इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ दिस प्रोपोर्शनल साइन हम लोग इसको म्यू नॉट बाई 4 पाई लिख सकता है इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस म्यू नॉट बाई 4 पाई इज ए कॉन्स्टेंट, जहां पर ये म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये क्या होगा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगा, द इजी विथ विच द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पेनेट्रेट द मीडियम, द इजी विथ विच द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पेनेट्रेट द मीडियम। सो दिस इज वैल्यू ऑफ द म्यू नॉट। ये परमिएबिलिटी क्या है, the easy with which the magnetic lines of force can penetrate the medium, इसका वैल्यू है ये। सो ये dv इज इक्वल टू ये हो गया। नाउ देन इसको वेक्टोरियल फॉर्म में कैसे होगा, ये dv क्या है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसको ये वेक्टोरियल फॉर्म को लिखने के लिए ये म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I dl sin theta by r square. Any vector quantity has a magnitude and इसका डायरेक्शन के लिए r cap। ये म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl वेक्टर sin theta by r square into r वेक्टर by mod r इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या हो जाएगा, आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ये सो दिस बी वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हुआ डीवी वेक्टर। ये डीवी वेक्टर क्या है, दिस डीवी वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंटल लेंथ। नाउ अगर पूरा के लिए यहाँ पर फाइंड करना होगा, इसके ऊपर समेशन कर देना होगा, दैट मीन्स इंटीग्रेशन। सो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। माइंड इट,
this mu naught by 4 pi is a constant, that's why it came outwards. This mu naught by 4 pi is written outside the integration. Integration is happening only upon the vector quantities. Sorry, which are variable. Integration is happening only upon the variable quantities, the quantities which can vary. So due to this elemental length dl, this magnetic field is a dv. So to find the magnetic field due to this whole wire, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया. Now this is also, ये जो एक्सप्रेशन आया, ये v वेक्टर, दिस v वेक्टर, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई. This I is also a constant current is flowing here. So I भी इंटीग्रेशन का बाहर में आ गया. This is also called the vectorial expression for Biot and Savar's law. This is also the vectorial expression for Biot and Savar's law. Now इस B क्या है? B है, इस B का बहुत सारा नाम है. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी नाम है उसका, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी नाम है उसका, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी नाम है. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बहुत सारा नाम है उसका. इसका ऐसा यूनिट क्या हो सकता है? टेस्ला भी बोल सकता है टी, और न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और हम लोग बोल सकता है एज वेबर पर मीटर स्क्वायर. बहुत सारा नाम है इसका. दिस आर ऑल्सो, और सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका? गॉस. 1 टेस्ला इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस. दिस इज द रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड द एसआई यूनिट. ये तो हो गया. नाउ द मेन थिंग हम लोग को एक चीज इंपॉर्टेंट देता है, इस म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला. इस म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रहेगा तो ठीक है, अगर भूल जाएगा क्या करेगा? ये म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेगा? सो इसका जो सिंपल जो फॉर्मूला है, फर्स्ट इसको लिखो. b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. दिस इज द मोस्ट सिंपल फॉर्मूला. सो इस b का यूनिट क्या हुआ था? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर. ये म्यू नॉट, ये करंट का जाएगा में क्या है? एम्पियर. ये dl क्या है? मीटर. और आर स्क्वायर, ये साइन थीटा का कोई डिग्री नहीं है, एंगल का कोई ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का कोई डिग्री नहीं होता है, सिंस दे आर द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स. सो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का कोई डायमेंशंस नहीं होता है. आर स्क्वायर क्या है? ये मीटर स्क्वायर. सो ये म्यू नॉट इज इक्वल टू न्यूटन, ये न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, एक काट गया, इंटू मीटर बाई एम्पियर. नाउ न्यूटन को क्या बोल सकता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर एंड मीटर इम्पल्स काट गया, a टू द पावर -2. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ये म्यू नॉट क्या हो जाएगा? m l t टू द पावर -2 a टू द पावर -2. दिस अगर एग्जाम में याद होगा तो ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो सी दिस डायमेंशनल फॉर्मूला, how it is determined. Okay, if any problem is there on numericals, do ping me on WhatsApp.